और आपका आज वीडियो में स्वागत और है। आज वीडियो हम लेकर आए हैं, उसका टाइटल है यूएई बिग इन्वेस्टमेंट इन कश्मीर, व्हाट चेंज्ड, विंटेज विद पलकी शर्मा। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का विजन लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर को फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा मैं ब्लॉग चैनल का लिंक इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर को फॉलो तो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। And we have some good news from Kashmir. A region which suffered decades of terrorism is finally enjoying the fruits of peace. Investors are turning to Kashmir. This was unimaginable just a few years ago. Today, Kashmir is a tourist hotspot and it's attracting foreign investment. Dubai's Emaar Group will invest a total of 500 crore rupees. This includes a mega mall project and IT towers to be set up in Jammu and Srinagar. It's significant, A, because of the money and development that will follow, and B, because this is a vote of confidence from an Arab nation for India's vision of Kashmir. So how did a terror-infested valley become an investor destination? Our next report tells you. अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे सिवाय खंड 1 के। It was August 2019. The government of India revoked Jammu and Kashmir's special status by abrogating Article 370. Jammu and Kashmir and Ladakh were made two separate union territories governed by the Indian government. And with this move, the story of Kashmir changed forever. Today, Kashmir is attracting global investors. The first big player is the United Arab Emirates. A group called Emaar is turning to Kashmir. This is the same group that built the Burj Khalifa. Now, Emaar is making a $60 million investment in Kashmir. That's close to 500 crore rupees. They will build a shopping mall and an IT tower in Srinagar. Construction is expected to be completed by 2026. Kashmir's administration says this is the first FDI investment in the region. The mall will be spread over an area of 1 million square feet. काफी बड़ा। It is expected to generate 7,000 to 8,000 jobs. The mall will have more than 500 shops, most of which will be operated by UAE-based companies. And this investment has not come out of the blue. Some structural changes have been made to Jammu and Kashmir. After the abrogation of Article 370, the Union Territory became subject to 890 central laws. Around 250 state laws have been eliminated and another 130 have been amended. In 2021, Jammu and Kashmir administration announced a new industrial development scheme. This is worth more than 28,400 crore rupees. The goal is simple, to encourage investment and take industrial development to the block level. In the same year, investments started pouring in. Kashmir attracted investments worth $2.5 billion in 2021. Last year, the figure shot up to more than $15 billion. And in the last 2 years, Jammu and Kashmir has received investment proposals from more than 5,000 companies. The UAE is one country that is very upbeat about investing in Kashmir. In January last year, it agreed to deliver projects worth over $1 billion in the valley. These include the development of industrial parks, a medical college, a specialty hospital, logistics centers, IT and multi-purpose towers. Remember, this is an Islamic nation investing in India's vision of Kashmir. It's a huge vote of confidence for the government and a setback to the Pakistanis. Investor confidence in Kashmir is a direct fallout of the improved security situation there. Kashmir is now relatively safe. 16 million tourists flocked to the valley last year, and now the UAE's big investment will have a domino effect. Emaar CEO Amit Jain said the investors should take a cue from the Emirati group. He said, and I quote, "This is the start. We should inspire people. People should aspire to follow us." Not very long ago, Kashmir was a region which made news for terror attacks and stone pelting. Today it is in the headlines as a destination for investors. It's a win for India. भाई ये न्यूज़ जो है मैंने 2-3 दिन पहले सुनी थी कि एमआर ग्रुप जो है वो कश्मीर में शॉपिंग मॉल बनाने जो है वो जा रहा है, लेकिन आईटी सेंटर का जो है मुझे आइडिया नहीं था। लेकिन हाँ, यहाँ से एक चीज़ जाहिर होती है कि भाई अगर आपके इन्वेस्टमेंट हो यानी कि इन्वेस्टमेंट आती है तो उसके लिए एक स्टेबलाइज गवर्नमेंट का और स्टेबलाइज इन्वायरमेंट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, मेरे मुताबिक इन्वेस्टमेंट का मतलब ही यही है कि आपकी गवर्नमेंट स्टेबल है और जो बाहर के इन्वेस्टर हैं उनको कॉन्फिडेंस है वहाँ की गवर्नमेंट पे कि जो भी चीज़ें वहाँ पर होंगी
होंगी और जो इन्वेस्टमेंट होगी वो सिक्योर रहेगी उनके लिए। मोर ओवर मुझे लगता है कि वाकई में ये कोई भी जगह पर जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो, जैसे हम देख रहे हैं कि आज कश्मीर में हो रही है इन्वेस्टमेंट, वहाँ के लोगों के लिए बहुत बड़ी ये अपॉर्चुनिटी है, बहुत ज्यादा लोगों के लिए रोजगार वहां पर आएगा। इनफैक्ट पिछले कुछ टाइम से हम लोग देख रहे हैं कि कश्मीर में काफी ज्यादा आप देखें तो एक नए नए रोजगार के आपको मौके नजर आ रहे हैं। जैसे रिसेंटली हम लोगों ने देखा था कि वहां पर एक मल्टीप्लेक्स भी स्टार्ट हुआ था, मतलब नहीं वहां पर आई थिंक पठान मूवी भी लगी थी ना, मतलब वो तो ऑपरेट होना, लेकिन जब हमने देखा था तब अभी उसके फाइनल टचिंग जो है वो दी जा रही थी। बिल्कुल। सो उससे कितना ज्यादा लोगों को एक तो एंटरटेनमेंट तो मिलता है। मुझे खुद सिनेमास बहुत पसंद है, इसलिए मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात होती है कि कहीं पर आपको एंटरटेनमेंट का सोर्स एक मिलना चाहिए। दूसरा अगर हम लोग देखें तो जब हम लोगों ने भी कश्मीर विजिट किया था, आपको इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर तो कभी नजर नहीं आती, और ना ही आपको कोई इतने बड़े लेवल पर कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट ही है, मतलब लोकल इन्वेस्टमेंट भी आपको उस कोई बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स या कुछ इस तरह की चीजें नजर नहीं आती। तो मुझे ये लगता है कि ये वाकई में अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडियन गवर्नमेंट की। और दूसरा मुझे ये भी लगता है कि पाकिस्तानी लोगों को स्पेशली ये चीज जो है वो सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए, क्योंकि इनका एक अलग ही चल रहा होता है दिमाग में ना, नहीं कश्मीर में ऐसे और कश्मीर में वैसे। मुझे लगता है कि इनको ना हकीकत से थोड़ा ना रूबरू होना चाहिए, इनको देखना चाहिए कि जो कश्मीरी हैं वो क्या किस तरीके से रहना चाहते हैं, वो कितने खुश हैं वहां पर। क्योंकि मैंने बहुत सारे कश्मीरी लड़कियों और का एक तरह से आप देख लें उनकी ओपिनियंस सुनी है, देखी हैं, वीडियोस देखी हैं, वो लोग खुश हैं। और वो लोग मतलब जो भी वहां पर वो काम हो रहा है, जैसे अगर हम लोग देखें, हम लोगों ने एक स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी वीडियो देखी थी कश्मीर में, जो ग्राउंड्स बन रहे थे कि बच्चों को किस तरीके से नई जनरेशन को इन्वॉल्व किया जा रहा है, रादर देन कि जो वो टेररिज्म की एक्टिविटीज में इतने ज्यादा इंगेज थे। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि जो इन्वेस्टमेंट हो रही है वहां के लोगों के लिए, लोकल्स के लिए बहुत खुशखबरी की बात है यार। उसके साथ अगर देखा जाए ना तो लोगों की जो जिंदगियां जो चेंज होगी, क्योंकि लाजमी बात है इतना लंबा अरसा जो है जब एक रीजन जो है वो अनस्टेबल रहे, उसके बाद जब वहाँ पर डेवलपमेंट होती है, टूरिज्म आता है, और उसके अलावा जो है जैसे गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा एफर्ट वहाँ पर हमें देखने को मिली है। बेशक वो किसी भी जो है आप कह लें एजुकेशन सेक्टर में कह लें या आप स्पोर्ट एक्टिविटीज़ में जो है कह लें, तो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से भी आपको जो है काफ़ी ज़्यादा एफर्ट वहाँ पर देखने को मिलती है कि उससे जो है यानी कि लोगों के जो माइंड जो है वो डाइवर्ट किए जाएं। ऑन दी अदर साइड बिल्कुल मैं एग्री करूंगा कि यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे लोगों का माइंडसेट जो है ना वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाया जाता है कि भाई अगर कोई फलाना इस्लामिक कंट्री जो है कश्मीर में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसके खिलाफ के ये जो है हमारा साथ नहीं दे रहा है, इस तरह उस तरह है। हाँ। इस तरह की आपको जो है न्यूज़ जो है वो सुनने को मिलती हैं, खासतौर पर अगर मेन स्ट्रीम मीडिया की जो है वो बात की जाए। तो मेरा ख्याल है कि पब्लिक को जो है ना इस तरह की पॉलिटिक्स से जो है ना बाहर निकल कर सोचने की ज़रूरत है कि भाई ऐसी कौन सी पॉलिसीज़ हैं, ऐसी कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर जो है वो चीज़ों को चेंज कर रहे हैं, अच्छे तरीके से हैंडल कर रहे हैं। क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो भाई कोई भी मुल्क होगा ना, अगर वहाँ की गवर्नमेंट स्टेबल होगी, वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन जो है स्टेबल होगी, तो कोई भी कंट्री वहाँ पर इन्वेस्ट करने को, या इन्वेस्टर्स जो होते हैं जो खुद जो है इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियाँ, वो इन्वेस्ट करने के लिए भी रेडी होंगी, बजाय ऐसे कंट्री में जहाँ पे आपको भाई पता ही ना हो कि भाई हालात क्या चल रहे हैं, आज डॉलर का रेट ये है तो कल वो है। क्योंकि अगर ऑन दी अदर साइड हम पाकिस्तान में देखते हैं तो भाई हर रोज़ आपको न्यूज़ देखने को मिलती है कि फ़लानी कंपनी ने जो है वो यानी कि अपना जो प्रोडक्शन प्लांट है वो होल्ड पर लगा दी इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से, डॉलर की वजह से या मटीरियल की वजह से, ठीक है ना। तो ये चीज़ें जो है यहाँ पे लोगों को सोचने की ज़रूरत है। मैं ये कहूँगी कि मुझे तो भाई ये बात बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि मुझे लगता है कि लोगों की बेहतरी के लिए बिल्कुल काम होना चाहिए, ना कि आपके पर्सनल एक जो आपकी ईगो है या बेनिफिट्स हैं उनके लिए काम होना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कि ये वाकई में जब कोई भी एक प्राइम मिनिस्टर है या कोई भी जो रूलिंग पार्टी होती है, ये उसकी ड्यूटी होती है कि वो लोगों का ख्याल रखें। और मुझे लगता है कि ये चीज़ लोगों में आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो सही दिशा में जाएं। क्योंकि अगर कश्मीर को लेकर देखा जाए तो इतने लंबे अरसे से इतनी डिबेट और एक वो एरिया जो है वो बहुत ज्यादा अनरेस्ट रहा है। सो तो मुझे लगता है कि ना जो लोग हैं ना, मतलब स्पेशली मैं पाकिस्तानी लोगों की यहाँ पर बात करूंगी, क्योंकि लोग बड़े स्टबर्न है अपनी ओपिनियंस को लेकर कि नहीं आपको दिखा दिया जाता है, ऐसा होता नहीं है। तो मुझे लगता है कि वो टाइम
टाइम आ गया कि अब आप चेंज करें अपनी ओपिनियन को, क्योंकि अगर आप देखें यूएई जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली वो अपना फायदा देख रहा है कि उसको आने वाले टाइम में मॉनेटरी टर्म में कितना फायदा होने वाला है। तो जो पूरी दुनिया है वो इसी तरीके से चलती है कि उनके कंट्री को कितना फायदा होगा या उनकी कंपनीज को कितना फायदा होगा। क्योंकि अब अगर आप अरब कंट्रीज को भी देखते हैं तो उनका भी जो एक सोचने का जो तरीकेकार है वो चेंज बहुत ज्यादा हो गया है। यानी कि अगर देखा जाए पहले जो है वो सिर्फ ऑयल पे रिलाई करते थे, ठीक है ना, लेकिन अब टाइम के साथ साथ वो जो है डिफरेंट सेक्टर्स में भी जा रहे हैं और उसका इम्पैक्ट यानी कि वो पूरी दुनिया पर जो है उनका आपको देखने को मिलता है कि भाई डिफरेंट कंट्रीज के साथ उनके अच्छे टर्म्स हैं, अच्छे रिलेशंस हैं और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। तुम देखो टूरिज्म इंडस्ट्री को भी कितना फ्लरिश कर रहे हैं टाइम, क्योंकि उनको पता है कि सारी जिंदगी वो भी ऑयल पर डिपेंड नहीं करेंगे और ना ही दूसरे कंट्रीज जो हैं वो उन पर डिपेंड करेंगे। बाकी एक चीज की भाई मैं यहाँ पर तारीफ करना चाहूंगी और वो मैं तारीफ करना चाहूंगी इंडियंस की, कि अभी जैसे हम लोग एमआर की भी सीईओ को देख रहे थे वो भी इंडियन थे, तो मुझे ये चीज बड़ी चलती है। आप कोई भी जगह आज उठाकर देख लो, बड़ी बड़ी जितनी भी आप अपनी मल्टीनेशनल कंपनीज कह लें या बड़े बड़े बिजनेस, बिल्कुल सब में आपको अच्छी अच्छी पोजीशंस पर इंडियंस ही नजर आएंगे और ये एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि ये आपकी कंट्री को स्ट्रॉन्ग करता है, ये आपकी कंट्री की लॉबी को स्ट्रॉन्ग करता है। सो मुझे लगता है कि ना पाकिस्तानियों को ये चीजें समझने की जरूरत है क्योंकि आप सीखते हो इनसे। भाई दूसरा जो है ये चीज दिखाता है कि आप जो ब्रेन जो यानी कि आपका एजुकेशन सिस्टम है वो किस तरह के ब्रेन जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। क्योंकि देखो अगर बाहर की कंपनीज भी आपको हायर कर रही हैं तो वो भी अपना फायदा देकर कि ये बंदा हमारे बिजनेस को कितना फायदा दे सकता है या कितना बिजनेस लेकर आ सकता है। सो मुझे लगता है कि भाई इंडियंस डिजर्व करते हैं जिस वो जगह पर बैठे हुए रह रहा है, आज पूरी दुनिया में उनका नाम हो रहा है तो वो उनकी काबिलियत की वजह से हो रहा है। क्योंकि मेरा ख्याल है कि हम लोग कोई भी नई वीडियो देखते हैं ना तो पीछे हम लोगों को किसी इंडियन का ही नाम नजर आ रहा होता है। बाकी आप जरूर बताइएगा कि आपका क्या कहना है इसके बारे में, आपको क्या लगता है कि क्या चेंजेस आएंगी इन सब इन्वेस्टमेंट से, स्पेशली आईटी को लेकर अगर हम बात करें और फिर बाकी इन्वेस्टमेंट्स को लेकर बात करें, और आने वाले टाइम में आप क्या देखते हैं और क्या इन्वेस्टमेंट हो सकती है, जरूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और इसी के साथ हमें ज्यादा हमारी वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।